Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, Assalamu alaikum and good morning. It's chapter 5 of your first year text. Our today's topic is angular acceleration. In our previous lectures, we have discussed about angular displacement and angular velocities and the relation of linear and angular displacement and linear velocity and angular velocity. Now, come to angular acceleration. What an angular acceleration is? Angular acceleration is the time rate of change of angular velocity. Like you have studied in linear motion, linear acceleration was the time rate of change of linear velocity. So, I am going to compare linear to angular. Only the word linear should be replaced by angular, then you will go to angular motion, you will switch over to angular motion. So, angular acceleration, the change in angular velocity of a body per unit time is called angular acceleration. The change in angular velocity of a body per unit time is called angular acceleration, or simply the time rate of change of angular velocity of a body is called angular acceleration, represented by alpha vector. So, change in angular velocity of a body per unit time is called angular acceleration. If the angular velocity of a body is changing with the passage of time, then the body will possess angular acceleration. The word change is important. In the definition, the word change in angular velocity, change in angular velocity. So, angular acceleration is not angular velocity by time, but it is the change in angular velocity divided by time. So, if the angular velocity is not changing, there will be no angular acceleration. So, in simple words, देखो angular acceleration क्या है? ये हैं angular velocity में तब्दीली आना वक्त के साथ. अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी वक्त के साथ साथ तब्दील होती है तो उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं. तब्दीली का लफ्ज़ जो है इम्पॉर्टेंट है. अगर तब्दीली नहीं आती हो एंगुलर वेलोसिटी में तो कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी. सो एंगुलर एक्सेलरेशन is the change in angular velocity in a unit time. Come to the mathematical formula of the angular acceleration. Suppose del omega be the change in angular velocity of a body in time delta t second, then according to the definition, angular acceleration is equal to change in angular velocity divided by time. Change in angular velocity divided by time. So, alpha is equal to del omega by delta t. Del omega if is the final velocity and omega I is the initial velocity, then the difference of the two is omega f minus omega I, which is equal to del omega, or delta t t f minus t I. Omega I is the angular acceleration at time t I. Omega f is the angular velocity of a body at time t f. So, alpha is equal to del omega by delta t. Come to the SI unit of acceleration. SI unit of acceleration,
the SI unit of angular acceleration is radian per second or radian per second square. Radian per second square. That is the SI unit of angular acceleration. Other unit can be revolution per second square, degrees per second square, and so on. Dimensions of angular acceleration is, you are aware that radian or plane angle has no dimension. So, s square, which is down, when it goes up, that will become s power minus 2. So, for time the dimensional symbol is capital T, which is t. So, t power minus 2 be the dimension of angular acceleration. So, angular acceleration का डायमेंशन t पावर माइनस 2 हो गया. रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं है, यानी प्लेन एंगल है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसीलिए t पावर माइनस 2 डायमेंशंस हो गए किस चीज़ की? एंगुलर एक्सेलरेशन के. नाउ नेचर ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन की, ये क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? एंगुलर एक्सेलरेशन लाइक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर वेलोसिटी is a vector quantity. So, angular acceleration is a vector quantity in nature and is directed along the axis of rotation, is like angular displacement and angular velocity, and its direction can be found by right hand rule. Angular acceleration चूँकि angular velocity का वो है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, हमने पढ़ा था कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है या अलोंग द पिवट पॉइंट होती हैं. तो इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होती हैं? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं. सो एंगुलर एक्सेलरेशन is a vector quantity and is directed along the axis of rotation and depending upon whether the rotation is anti-clockwise or clockwise. For example, if somebody is rotating like that, तो ये क्या होगी? ये थंब जो है आपको एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन देगी, बशर्ते कि वेरिएशन आ रही है वेलोसिटी में. अगर वेलोसिटी में वेरिएशन नहीं आ रही एंगुलर में, तो एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द नेचर ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, विच इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. नेचर ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. टाइप्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. टाइप्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन की, ये एंगुलर एक्सेलरेशन के टाइप्स क्या हैं? जिस तरह लीनियर एक्सेलरेशन आपने पढ़ी थी, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया? अब एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ आ जाओ. लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन को आपने डिफाइन किया था टोटल चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. हेयर एंगुलर एक्सेलरेशन इज द टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम is called एंगुलर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को आप डिवाइड कर दे टोटल टाइम टेकन पे, तो वो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाती हैं. अब देखो, सपोज डेल ओमेगा इज़ द टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन टाइम डेल्टा टी, तो अल्फ़ा एवरेज क्या हो जाएगी? डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई और टी एफ माइनस टी आई. Omega f is the final velocity at time Tf and omega I is the initial velocity, angular velocity at time Ti. तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की डिफिनीशन आपके पास क्या आ गई? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन जो है टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसको एवरेज. और एवरेज आपको दो मुकामात पर इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन देगी. एक तो इनिशियल पे या स्टार्ट ऑफ मोशन पे, और दूसरा एंड ऑफ मोशन या टर्मिनेशन ऑफ मोशन पे.
Next is instantaneous angular acceleration, like you have done before for linear instantaneous acceleration. Linear instantaneous acceleration was time rate of change of linear velocity in a very small interval of time or any instant of time. In a similar fashion, instantaneous angular acceleration, the angular acceleration of an object or a body at any instant of time, time limit should be very small so that the starting point and end point are so close that they are treated as one point. Or change in angular velocity of a body in a very short interval of time such that delta t tends to 0, not 0 but tends to 0, closer to 0 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। किसी बॉडी का किसी भी लम्हे पर किसी भी पॉइंट पर एंगुलर एक्सेलरेशन को हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। या अगर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए टाइम लिमिट को बहुत कम कर दिया जाए तो फिर वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगी। मतलब ये है कि अगर स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी आती है इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस कहते हैं। यानी टाइम लिमिट बहुत कम हो, लिमिट हो गया, यानी आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी उस पर। अल्फा इंस्टेंटेनियस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो लिमिट क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये ए वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अल्फा ए वी आ जाएगा। यानी ये आपके पास आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हमने की। जिस तरह आपने पढ़ा था कि लीनियर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कब बराबर होगी? तब बराबर होगी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है। तो इस केस में अल्फा एवरेज और अल्फा इंस्टेंटेनियस बराबर होंगे, यानी एंगुलर एवरेज एक्सेलरेशन और एंगुलर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तब बराबर होंगे अगर ऑब्जेक्ट क्या करता है? यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन से जा रहा है। So, average angular acceleration and instantaneous angular acceleration will be same provided that the angular acceleration is constant. Now, come to uniform or constant angular acceleration. I am always telling you about the linear and then come to the angular. You studied in chapter 3 about the linear uniform acceleration, which was equal change in linear velocity in equal interval of time. Here we will replace the word linear by angular. So, uniform or constant angular acceleration can be defined as equal change in velocity of an object in equal intervals of time is uniform acceleration, meaning that if equal changes in angular velocity are coming in equal interval of time, then the body is having a constant or uniform angular acceleration. अगर कोई बॉडी बराबर तब्दीलियां कर रही हैं एंगुलर वेलोसिटी में और बराबर वक्त के वक्फों में कर रही हैं, तो उस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर कोई बॉडी वक्त के बराबर वक्फों में तब्दीली लाती हैं, बराबर तब्दीली लाती हैं एंगुलर वेलोसिटी में, तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी या कांस्टेंट होगी। और उसका प्लॉट जो है स्ट्रेट लाइन आएगा वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म और
जिस तरह आपने पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म आर वेरिएबल लीनियर एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म आर वेरिएबल लीनियर एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था unequal change in linear velocity in equal interval of time, unequal change in linear velocity in equal interval of time. ये आपने लीनियर वेरिएबल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। अब हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज unequal change in angular velocity of an object in equal intervals of time. इसको हम फिर क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। If unequal changes in velocity are coming in equal interval of times, or equal change in angular velocity are coming in unequal interval of time, यानी एक equal कर लो और दूसरा unequal कर लो, तो फिर जो है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा उससे। So unequal change in angular velocity of a body in equal interval of time, or equal change in angular velocity in unequal interval of time. ये देखो, equal change in angular velocity of an object in unequal interval of time is called variable angular acceleration. तो ये है आपके पास का प्लॉट, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, इधर उधर का आएगा, अप डाउन। और ये अब हम आते हैं, जिस तरह हमने पहले चैप्टर 3 में पढ़ा था कि पॉजिटिव लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉजिटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। If the angular velocity of a body is increasing with time, then the angular acceleration of that body will be positive. अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही हैं, यानी कम से ज़्यादा हो रही हैं टाइम के साथ साथ, तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर इंस्टेंस, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी 10 रेडियन से 20 रेडियन पर चली जाती हैं 5 सेकंड में, तो इसकी अल्फ़ा क्या होगी, 20 माइनस 10/5, इससे क्या आएगा, +2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आएगा। +2, फाइनल 20 है, इनिशियल 10 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दैट विल गिव यू पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन देगा। अब हम आते हैं नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन और नेगेटिव एंगुलर रिटार्डेशन और नेगेटिव एंगुलर डीसेलरेशन। जिस तरह आपने लीनियर में पढ़ा था, इसी तरह यहाँ पर सिर्फ एंगुलर का लफ्ज़ जो है लीनियर की जगह आ गया है। तो अब ये एंगुलर मोशन को चूँकि पढ़ रहे हैं, तो हम एंगुलर मोशन को मीन करेंगे इस चैप्टर में। सो व्हेन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a body decreases with time, then angular acceleration is negative. अगर angular velocity वक्त के साथ साथ डिक्रीज़ होती हैं, तो फ़र्ज़ करिए एक टायर तेज़ घूम रहा है और आपने उसको हाथ लगाया तो वो स्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब कि पहले एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा थी, जब हाथ लगा दिया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो उस केस में आपकी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। So when the angular velocity of a body decreases with time, then angular acceleration is negative. For instance, if angular velocity of a body changes from 20 radian per second to 10 radian per second in 5 seconds, यानी पहले कोई टायर रोटेट कर रहा था 20 रेडियन पर सेकेंड से और अब 10 रेडियन पर सेकेंड पे आ गया, तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अब फाइनल क्या है 10 है और इनिशियल क्या है 20 है, तो 10 माइनस 20/5, तो -2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। सो दैट विल बी नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ कम टू ज़ीरो। व्हेन विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो? द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो if either the rotating body is at rest or moving with a uniform angular velocity, meaning that if the angular velocity of a body is not changing with time, then in this case the angular acceleration will be zero, because there is no change in angular velocity. And I have told you before, the word change is important. Angular velocity is not important, but the word change is important.
Now come to few MCQs on that topic, angular acceleration. The angular velocity of a body changes from 20 radian per second to 30 radian per second in 5 seconds. The angular acceleration is, एक बॉडी है, इब्तिदा में 20 रेडियन पर सेकेंड से चल रही हैं, फिर 30 रेडियन पर सेकेंड पे चली गई, कितने टाइम में? 5 सेकेंड में। तो एक एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? तो जनाब आपने ऑलरेडी किया है, अल्फा डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी, तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई और टी एफ माइनस टी आई। तो इनिशियल 20 है, फाइनल 30, तो 30 माइनस 20 10 आ जाएगा, और 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या आ जाएगा? 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर विल बी योर आंसर। अब a fan is rotating with 30 radian per second for 15 seconds. The angular acceleration of the fan is, एक पंखा है जो कि 30 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है 15 सेकेंड के लिए, तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? आपको मैंने जो एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन की वो कर दी डिफिनेशन। जब देखो ये 30 रेडियन पर सेकेंड कितने टाइम के लिए है? 15 सेकेंड के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। तो उसी दौरान इस पंखे में किसी किस्म की एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी, बिकॉज 30 माइनस 30 विल गिव यू 0। सो द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा आपको पता है, डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा ई से, हेयर ओमेगा एफ is equal to omega I which is equal to 30 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी? वो 0 होगी। अच्छा जी, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, चूंकि ये अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, तो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दैट। Now, like we have related linear displacement to angular displacement, we have related linear velocity to angular velocity. Now, we are going to relate linear acceleration to angular acceleration. For this, consider a body is rotating in a circular path of radius r between 2 points as shown in this figure, which is 5.3. So you see a body is rotating from A towards B. Here at A velocity is v1, at B velocity is v2. Suppose v1 velocity of a body at one point at time t1 and v2 velocity of a body at another point at time t2. फ़र्ज़ करें एक बॉडी है, गोल दायरे में घूम रही है, और उस दायरे का रेडियस जो है वो किसके बराबर है? r के बराबर है। वेलोसिटी जो होता है हमेशा लीनियर वेलोसिटी जो होती है, इट इज टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है? v1 है, और इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है? v2 है, और टाइम t2 है। तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास क्या आ गया? v2 माइनस v1, दैट इज़ द चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। और डेल्टा टी क्या होगा? t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो आपको पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट किस चीज़ के बराबर होता है? a इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, या लीनियर एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं। तो डेल्टा वी किसके बराबर है? v2 माइनस v1, और डेल्टा टी t2 माइनस t1, दैट इज t2 माइनस t1, दैट इज t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। ठीक, तो ये आ जाएगा। आपने इससे पहले पढ़ा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो r तो कांस्टेंट है, r ओमेगा 2 आ जाएगा, v2 क्या आ जाएगा? r ओमेगा 2 आ जाएगा। v1 क्या आ जाएगा? v1 r ओमेगा 1 आ जाएगा, r ओमेगा 1 आ जाएगा, और नीचे t2 और t1 आ जाएगा, t2 और t1 अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? अब r को कॉमन ले लिया हमने, क्या ले लिया? r को कॉमन ले लिया। जब r को कॉमन ले लिया तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और नीचे t2 माइनस t1 आ जाएगा।
तो आपको ओमेगा 2 माइनस ओमेगा T2 माइनस T1 ये क्या है, ये अल्फ़ा के बराबर है। किसके बराबर है, अल्फ़ा के बराबर है। तो जनाब v आपको पता था कि r ओमेगा था और अल्फ़ा ये आ गया है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये a लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू r अल्फ़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, r multiplied by alpha, which gives you the relation between linear acceleration and angular acceleration, meaning that linear acceleration is a direct function of angular acceleration और उसको वेक्टोरियली हम लिखते हैं a is equal to alpha cross r, the cross product of angular acceleration and radius vector is equal to tangential acceleration is equal to tangential acceleration। तो ये जनाब आपके पास क्या हो गया, हमने कहा कि वेलोसिटी किसी लम्हे पर v2 लीनियर और दूसरी जगह पे v1 है, तो दोनों का जो डिफरेंस निकालते हैं तो वो v2 माइनस v1 आ जाएगा और फिर t2 माइनस t1 है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि v इज इक्वल टू r ओमेगा है, तो v2 r ओमेगा 2 आ जाएगा, v1 r ओमेगा 1 आ जाएगा और नीचे t2 माइनस t1 होगा। अब इन दोनों में से r को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। चूँकि आपने पता है ये डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी आ गया तो अल्फ़ा आ गया, तो ए क्या आ गया, आर अल्फ़ा हो गया और या अल्फ़ा क्रॉस आर बाई वेक्टोरियल नेचर वी कैन राइट इट अल्फ़ा क्रॉस आर, इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा। सो दिस इज़ द रिलेशन। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगी, अगर वो कम होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी कम होगी। ये ज़रा देख लो, इसमें देखो, पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 20 रेडियन, द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज। तो सिंपल बात है कि a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा है, तो r दिया हुआ है आपको 0.550 सेंटीमीटर है, तो ये 0.5 है और अल्फ़ा जो है वो 20 रेडियन पर सेकंड है, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो इससे आपके पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, बिकॉज इट इज़ द लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो दैट इज़ व्हाट अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ ऑल थ्री। सबसे पहले हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, फिर एंगुलर वेलोसिटी को, और फिर रिलेशंस बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को निकाला, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, और इसके बाद फिर हमने एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन भी निकाल दिया। सो ये आपके पास था थोड़ा सा कंपैरिजन पिक्चर कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो है बेसिकली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। अगर एंगुलर वेलोसिटी में तब्दीली नहीं आती तो कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगी। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। The word change is important. So if the angular velocity is increasing, then angular acceleration will be positive. If the angular velocity is decreasing, then angular acceleration will be negative. If the angular velocity is constant, then the angular acceleration will be 0. फिर आपने अगर रिलेशन निकालना था किसके दरमियान, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसने आपने कहा कि एक बॉडी रोटेट कर रही है सर्कल में और दो पॉइंट आपने लिए, एक पॉइंट पे आपने वेलोसिटी को v1 ले लिया, दूसरे पे v2 ले लिया, तो जो लीनियर एक्सेलरेशन है डेल्टा v बाई डेल्टा टी के बराबर है वो आपने कर दिया, तो v2 माइनस v1 बाई डेल्टा टी आ गया। अब v2 आपके पास बराबर है r ओमेगा 2 और v1 जो है r ओमेगा 1 के बराबर है। यहाँ पर फिर r को हमने कांस्टेंट कॉमन ले लिया और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और यहाँ पर आया t2 माइनस t1, तो यहाँ पर जो आपके पास आ गया अल्फ़ा जो आ गया आपके पास ये है डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी या ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये रिलेशन आ गया a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। नीचे जो आ गया क्या, नीचे आपके पास रिलेशन a इज इक्वल टू आर अल्फ़ा और या अल्फ़ा क्रॉस आर।